Yes, screen is visible to everyone, students. Screen is visible. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay. In the last lecture, we have covered the state management techniques. Okay, we have completed state management techniques. View state, cookies, query string, and sessions. Okay, these state management techniques we have completed. Okay. Now, the next topic is style sheet. Okay, after style sheet, we learn the themes, and then after we will learn the master page. Okay, so these three topics are related to your design. Okay, design. These three topics are related to your design. Okay, so we will learn today only theory regarding style sheet and themes. In the next lecture, we will do the practicals. Okay, today's lecture we will learn on the theory about what is style sheet, types of style sheet, what is the use of style sheet, and theme. Okay, what is the use of theme? Okay, and what is the use of master page? That today we will learn, and in the next lecture we will do the practical regarding all these topics. Okay. Chalo. Style sheet. The first sheet, style sheet. You know what is a style sheet. In HTML, we have created this style sheet. Okay, we have done this style sheet. Okay. What is the use of style sheet? Who will tell me what is the use of style sheet? HTML में हम लोगों ने किया था style sheet. Okay, what is a style sheet, students? What is the use of style sheet? Hmm? Yes, chalo. Why we are using this style sheet in HTML? HTML का बताओ. What is style sheet? Hmm? Yes, chalo. Yes, I am waiting, students. मैम वेब पेज पे जो शीट बनता है ना उसे डिजाइन करने के लिए Yes. Okay. Designing के लिए, formatting के लिए, you are using the style sheet. Okay. If you want to do formatting, okay, background color, colors, styles, whatever you want to do, whatever you want to apply formatting to your web page, so you are using the style sheet. Yes, good, Rohit. Okay. Now the same purpose of the style sheet is same to here. Okay, that types also same in this .NET. Okay, nowadays we can see the content of web pages in different styles. Okay, it may be background color, text size, or an image. This can be achieved by using the style sheet very easily. Okay, जो हम लोग करते हैं ना फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज में जाके. ओके, इन द वेब पेज में, इन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में वी आर हाउ वी कलर दी वेब फॉर्म की प्रॉपर्टीज में जाके. ओके, प्रॉपर्टीज में जाके वी आर सेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ label का properties we are settings. Okay, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज. ओके, फॉर कलर्स. ओके, वैसा हम लोग करते हैं. तो वो तो क्या हो गया, फॉर पर्टिकुलर कंट्रोल के लिए हो गया. इफ यू वांट टू डू फॉर्मेटिंग एडवांस, ठीक है, आप एडवांस में करके रख सकते हैं. जितना भी लेबल्स है मेरे वेब पेज में वो सेम होना चाहिए. ओके, ऐसे होता है ना इन यू कैन से इन एनी वेबसाइट्स. ओके, एनी वेबसाइट्स जो ऑल द कंट्रोल्स है वो सेम होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ. तो एवरी पेजेस, फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट है उसमें एवरी पेजेस में जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो कंटेंट है उसका फॉर्मेटिंग सेम होगा. जितने भी बटन्स हैं इन होल वेबसाइट, वो बटन्स का जो डिजाइनिंग वगैरह वो सेम होगा. साइज, उसका जो टेक्स्ट है वो, उसका जो फॉर्मेटिंग है वो सेम रहेगा. ठीक है, हेडर तो हर एक पूरे वेबसाइट में हेडर इज सेम. ओके, तो वो एक सिमिलर लुक लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टाइल शीट. ठीक है, so style sheet is a set of characteristics to external functionality or formatting feature of a type. Style sheet consists of a number of rules that define how various web page elements should be displayed. Okay, it defines how various web page elements should be displayed. Okay, style sheet can be classified into three types. There are three types of style sheet, as we know: inline style sheet, embedded style sheet, and cascading style sheet. Okay, we have already covered these types in the HTML. Okay, हमने HTML में already ये cover किया था, practical भी किया था style sheet का. Okay, what is the inline style sheet? The style sheet attached to the particular occurrence of tag is called the inline style sheet. ठीक है, कोई टैग्स वगैरह है, ठीक है, इन टैग्स में हम लोग
पर्टिकुलर टैग्स को असाइन करें, ठीक है, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, वट एवर टैग्स आर देयर इन दी कोडिंग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में या तो सोर्स कोड में या तो HTML में, तो जो पर्टिकुलर टैग को आप जो फॉर्मेटिंग करते दैट इज कॉल्ड द इनलाइन स्टाइल शीट, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इनलाइन स्टाइल शीट यूज करते हैं। H1 स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ओके, मतलब जो भी H1 टैग्स है, जो हेडिंग टैग्स है, उसका स्टाइल्स वी हैव सेट द बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर उसका रेड दे दिया एंड फॉन्ट कलर उसका क्या दिया, कलर दे दिया, ओके। उसमें हमने ये टाइप किया, ये जो हेडिंग दिया है दैट विल बी ब्लू कलर का होगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड होगा। तो द अबव एग्जांपल मेक्स हेडर 1 टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर टू रेड एंड फॉन्ट कलर टू ब्लू। तो व्हाट इज द इनलाइन स्टाइल शीट? इनलाइन स्टाइल शीट मतलब क्या, पर्टिकुलर टैग को जो हम लोग असाइन करेंगे स्टाइल, दैट इज कॉल्ड द इनलाइन स्टाइल शीट। एम्बेडेड स्टाइल शीट, the style sheet attached to the particular web page is called the embedded style sheet, ठीक है। दिस विल बी अप्लाई टू द occurrences ऑफ द टैग विद इन द वेब पेज। जो वेब पेज है उसमें हम लोग टाइटल में, ठीक है, इन दी टाइटल टैग और विद इन द हेड टैग, सॉरी विद इन द हेड टैग जो आप स्टाइल्स अप्लाई करोगे आपके वेब पेज के लिए, दैट इज कॉल्ड द एम्बेडेड स्टाइल शीट, ओके। मतलब आपने स्टाइल शीट बना के रखा है, कहाँ पे बना के रखा है, विद इन द सेम वेब पेज, ठीक है, ऊपर आपने स्टाइल शीट बना के रखा है इन द सेम वेब पेज में, ओके। तो दैट इज योर एम्बेडेड स्टाइल शीट। सी दिस इज आपका एक वेब पेज है, ठीक है, वो वेब पेज में ही आपने बनाया है, कहाँ पे बनाया है, विद इन दी हेड टैग के अंदर, ठीक है। कैसे बनाते हैं, जैसे HTML में क्या था, सेम वही चीज है। स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS, बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, जितने भी H1 टैग्स है H1 टैग्स को दिस फॉर्मेटिंग विल बी अप्लाई, ओके। H2 टैग जो हम लोग यूज किए हैं उसके लिए ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा, एंड यहाँ पे स्टाइल शीट हमने क्लोज कर दिया, ओके। नाउ सेम विद इन द सेम पेज, ठीक है, जैसे आप कोडिंग करते हैं वैसे ही, ओके। आप इन विजुअल स्टूडियो यू विल राइट ऑल दिस थिंग्स इन दी सोर्स कोड। कहाँ पे लिखोगे आप, सोर्स कोड, जो डिजाइनिंग पेज है, ठीक है। वी कैन डू द डिजाइनिंग विद इन टू यूजिंग द टू वेज, एक तो कंट्रोल से टूल टेक्स्ट में जाके कंट्रोल्स लेके, अदरवाइज सोर्स कोड में जाके HTML कोड लिख के, ठीक है। तो आप ये जो स्टाइल शीट है वो कहाँ पे क्रिएट करोगे, HTML टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स कोड में, वहां पे। Style sheet with classes. Okay, it requires to define more than one style sheet for a single tag. Okay, तो ये तो classes वाला है, ठीक है, इतना you know. Okay, with the classes के साथ आप करते हो, that is common. And the third type is cascading. Okay, first हमने देखा inline style sheet. Second जो है that is embedded, मतलब within the web page you will create the style sheet. Okay, and the third one is cascading style sheet, CSS, cascading style sheet, मतलब external style sheet. Okay, external style sheet को आप क्या बोलोगे, cascading style sheet, CSS. The style sheet defined within a CSS file is called the cascading style sheet. This provides uniformity of text appearance throughout the websites and maintenance will be easier. Okay. In ASP.NET, cascading style sheet can be created by using the style sheet template. Okay. एक्सटर्नल आप इन HTML एक्सटर्नल स्टाइल शीट में आप क्या करते थे, आप एक पेज मतलब एक नोटपैड में आप डिजाइनिंग करके रखते थे स्टाइल शीट आपका जो भी बनाना है, एंड उसको .css फाइल से सेव करते थे, ओके। एंड दैट एक्सटर्नल फाइल को आप क्या करते थे, लिंक करते थे आपका HTML फाइल में, ओके। तो सेम थिंग यहाँ पे करना है, बट यहाँ पे क्या है, इन दी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में आपका स्टाइल शीट का जो टेम्पलेट एक फाइल रेडी है, जैसे हम लोग XML फाइल वी आर रेडी ना वेब फॉर्म ऐड करते हैं, वैसे ही स्टाइल शीट एक जो फाइल है दैट इज रेडीमेड फाइल, तो आपको उसको ऐड करना है, एंड वो फाइल को ऐड करने के बाद यू हैव टू राइट योर ओन डिजाइनिंग, आपको जो भी डिजाइनिंग उसमें करना है, टेक्स्ट को जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है दैट यू विल राइट, ओके। तो एड न्यू आइटम में जाके यू विल फाइंड दी स्टाइल शीट, ठीक है। नेम उसका स्टाइल शीट जो भी आपको देना है, यू कैन गिव नेम एंड .css इज एक्सटेंशन, css का हो जाएगा उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। आफ्टर एडिंग दिस फाइल, ठीक है, अब ये फाइल जो ऐड हो जाएगा स्टाइल शीट .css करके, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मेटिंग आपको देना है, ठीक है, जो भी टैग्स को वो फॉर्मेटिंग आप दोगे उसमें लिखोगे, एंड देन आफ्टर वो जो एक्सटर्नल फाइल आपने बनाया स्टाइल शीट फाइल, दैट यू हैव टू लिंक विथ योर वेब पेज, ठीक है। आपको जो वेब पेज में CSS फाइल अप्लाई करना है, इन दैट फाइल यू हैव टू राइट द लिंक, ओके। लिंक टैग आपको लिखना है, लिंक हेडर रेफरेंस इक्वल्स टू स्टाइल शीट रिलेशन स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS, सेम है जो हमने HTML में किया था, सेम थिंग यहाँ पे करना है, स्टाइल शीट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इन HTML you have created the style sheet, same way, okay, you have to use here,
वैसे ही आपको करना है जैसे आपने HTML में किया था। ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको स्टाइल शीट रेडीमेड मिलेगा फॉर द एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए। ओके, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए इफ यू वांट टू क्रिएट द कास्केडिंग, मतलब एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्रिएट करना है तो यू हैव टू ऐड वन फाइल, द नेम ऑफ दैट फाइल इज स्टाइल शीट। ऐड दैट फाइल, राइट दी योर फॉर्मेटिंग, आपको जो भी फॉर्मेटिंग लिखना है वो फॉर्मेटिंग उसमें लिखो। एंड देन जो भी ASPX वेब पेज में आपको अप्लाई करना है, यू वांट टू अप्लाई whichever .aspx फाइल वेब पेज में अप्लाई करना है, उसको क्या करो, लिंक कर दो। कैसे लिंक करना है, उसके हेड सेक्शन में आपको ये लिंक लिखना है। लिंक, हेडर, रेफरेंस, रेफरेंस दे दो, स्टाइल शीट का नेम, रेफरेंस मतलब नेम ऑफ द स्टाइल शीट, रिलेशन स्टाइल शीट एंड टाइप। ओके ओके, सी जो आपका वेब पेज है, ठीक है, जो आपका वेब पेज है उसमें हेडर में आप क्या लिखोगे, जो स्टाइल शीट है, ठीक है, स्टाइल शीट को लिंक करोगे। ओके, दिस इज अ स्टाइल शीट। ओके, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ न्यू नहीं है। बट व्हाट इज अ डिफरेंस क्या है, द स्टाइल शीट इज एप्लीकेबल टू ओनली HTML टैग्स, दैट इज द मेन थिंग। ओके, in the Microsoft Visual Studio if you are using the style sheet, the style sheet is applicable on the HTML text. Okay, HTML टैग्स को ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं .NET में, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में, किसको, स्टाइल शीट को। This concept is extended in ASP.NET 2.0 for server-side controls. Okay, if you want to apply, if you want to do formatting, okay, to the server-side controls को आपको formatting करना है तो you have to use theme. Okay, आपको क्या concept use करना है, theme and skin. You can use this style sheet in Microsoft Visual Studio, but जो style sheet जो आप use करोगे, the style sheet is applicable to only HTML text. We know कि there are 3 types of controls है Microsoft Visual Studio में, ASP.NET में। HTML server controls है, okay, then HTML controls है, then web server controls है, ठीक है, and validations controls है। तो जो HTML controls है, only HTML tags को you can assign the style sheet। आप HTML कंट्रोल्स को ही स्टाइल शीट असाइन कर सकते हो। अगर आपको वेब सर्वर कंट्रोल्स को स्टाइल शीट अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल लेबल हो गया, टेक्स्ट हो गया, एड रोटेटर हो गया, जो वेब सर्वर कंट्रोल्स वी हैव लर्न, ओके, अगर इफ यू वांट टू अप्लाई द स्टाइल शीट टू दैट कंट्रोल्स, वेब सर्वर कंट्रोल्स को, तो वी हैव टू यूज थीम। इन दैट केस वी कैन नॉट यूज द स्टाइल शीट, हम यूज नहीं कर सकते। तो वेब सर्वर कंट्रोल्स को अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो यू कैन यूज द थीम, THEME, थीम आपको यूज करना है। थीम एंड स्कीम, स्किन कंसेप्ट, व्हाट इज स्किन एंड थीम मैं आपको बताती हूँ, बट अभी दिमाग में एक चीज सेट करके रखो, वी कैन नॉट अप्लाई द स्टाइल शीट टू दी सर्वर कंट्रोल, सर्वर साइड कंट्रोल्स को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली HTML जो टैग्स है, बॉडी टैग हो गया, सॉरी हाँ बॉडी टैग हो गया, या तो हेड हो गया, या तो प्री पैराग्राफ टैग हो गया, ठीक है, ये जो HTML के टैग्स है ओनली उसको ही यू कैन असाइन दी स्टाइल शीट। ओके, डी हो गया, पैराग्राफ हो गया, ठीक है, तो वो सारे को आप क्या अप्लाई करोगे, स्टाइल शीट अप्लाई करोगे। हाँ, जो लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, जो एड रोटेटर कंट्रोल्स है, कैलेंडर कंट्रोल्स है, उसको आप कुछ इफ यू वांट टू डू फॉर्मेटिंग तो यू हैव टू यूज द थीम कंट्रोल, सॉरी थीम कंसेप्ट। आपको क्या यूज करना है, थीम, THEME, थीम। ओके, जस्ट अभी याद रखो, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया कि यस ये सब क्या है, ठीक है। थीम एंड स्किन, व्हाट इज अ थीम, थीम इज अ कलेक्शन ऑफ स्किन फाइल। जब हम लोग थीम ऐड करेंगे ना, थीम इज अ फाइल, वी हैव टू ऐड थीम, ओके, तो ऑटोमेटिकली स्किन फाइल ऐड हो जाएगा। स्किन फाइल विल कंटेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट कंट्रोल्स, ओके, अलग अलग कंट्रोल्स जो है we can set the properties for that controls, the theme can be attached to the web page, the control placed on the web, ठीक है, चलो ये जाना है, हम लोग पूरा वही देखते हैं, थीम। ओके, इसमें हम लोग कवर करते हैं व्हाट इज थीम। तो व्हाट इज स्टाइल शीट, नाउ यू नो, ठीक है, स्टाइल शीट क्या है आपको पता है। स्टाइल शीट इज यूज फॉर द डिजाइनिंग, ओके, डिजाइनिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग स्टाइल शीट यूज करते हैं। बट स्टाइल शीट जो है दैट वी कैन अप्लाई ओनली दी HTML टैग्स, HTML टैग्स को ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन दी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में भी हम लोग ओनली HTML टैग्स को ही वी कैन अप्लाई दी स्टाइल शीट। नाउ बाकी जो टैग्स HTML छोड़ के जो बाकी जो सब अवेलेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, जो ऑल कंट्रोल्स है, वेब सर्वर कंट्रोल्स, अगर उसको डिजाइनिंग करना है तो उसको फॉर्मेटिंग करना है तो क्या है हमारे पास, ठीक है, तो उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसको डिजाइनिंग करने के लिए वी हैव द थीम। क्या है हमारे पास, थीम कंसेप्ट, THEME, थीम।
ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन होगा कि स्टाइल शीट का ओनली एचटीएमएल टैग्स, एचटीएमएल और एलिमेंट्स ही हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, तो बाकी लेबल, कंट्रोल, बटन वगैरह जो कंट्रोल्स है उसका क्या, उसको हम लोग कैसे डिजाइनिंग करेंगे। तो उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए वी हैव दी थीम। क्या है हमारे पास, THEME, थीम। ओके, a theme decide the looks and feel of the website. It is a collection of files that define the looks of page. It is a collection of file. Theme is a collection of file. We will make the file within the theme that defines the looks of the page. It can include skin file, CSS file and images. Okay, all we can use. कैसे यूज करना है, वी विल डू विद द प्रैक्टिकल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग बताऊंगी मैं आपको कैसे यूज करना है थीम में ये सारी चीजें। ओके, वी डिफाइन द थीम इन अ स्पेशल ऐप थीम फोल्डर। ओके, आप जब थीम ऐड करोगे ना, ऐड न्यू आइटम में जाके यू हैव टू ऐड थीम फाइल, तो ऑटोमेटिक ऐप थीम फोल्डर विल बी क्रिएटेड। कौन सा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ऐप अंडरस्कोर थीम्स करके फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। Inside this folder is one or more subfolder names theme1, theme2 that define the actual theme. Then according to your requirements you will create the themes. Okay, for example one theme आपने बनाया, वो theme में आप क्या करोगे और लेबल्स है, बटन से, उसको फॉर्मेटिंग करके रख दोगे। सेकंड थीम आप बना रहे हो, उसमें और कोई कंट्रोल्स के लिए आप क्या करोगे, थीम बना के रखोगे। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट विल मेक द डिफरेंट डिफरेंट थीम्स। द थीम प्रॉपर्टीज अप्लाइड लेट इन द पेज लाइफ साइकिल effectively overriding any customization you may have for individual controls on your page। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन दिस। ओके, अभी ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिकल्स करेंगे देन यू विल गेट द आइडिया। Themes are also a new feature of ASP.NET that helps maintain the consistent look and feel across all or several pages of our websites। Again वही चीज है, themes are needed when we want to keep the style and layout information file separate from the other websites file। Okay, themes are needed when we want to keep the style and layout information file separate from the other websites file। Okay, आप डिजाइनिंग प्रॉपर्टीज में जाके डिजाइनिंग तो कर ही सकते हो, वो मैंने आपको दिखाया हाउ टू डू फॉर्मेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर कंट्रोल। अभी तक हम लोग ऐसे ही कर रहे थे ना, कि लेबल लिया है, सपोज लेबल में कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो सिलेक्ट द लेबल, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाकर उसका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करो। ठीक है, उसका जो भी हाइट लेंथ वगैरह जो भी है वो यू कैन सेट। सेम वैसे ही और कोई कंट्रोल लिया है, रेडियो बटन वगैरह, तो प्रॉपर्टीज में जाके यू कैन सेट। आप प्रॉपर्टीज में जाकर तो सेट कर ही सकते हो, बट अगर आपका वेबसाइट है तो हर एक इतना जो बड़ा वेबसाइट बना है जो आप डिजाइनिंग करे, तो हर एक को बार बार सेट करने से अच्छा आप लोग क्या करोगे, यू विल मेक दी थीम। आप एक थीम बनाओगे कि मेरे वेबसाइट्स में जितने भी लेबल्स है वो सारे लेबल्स का बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, वो सारे लेबल्स है उसमें फॉन्ट कलर ये होना चाहिए, बॉर्डर ये होना चाहिए। ठीक है, देन फॉर एग्जांपल आपने बटन लिया है, ठीक है, तो जितने भी मेरे बटन से वेबसाइट्स में मैं जितना भी बटन ऑल वेब पेजेस जितना भी बटन्स मैंने डिफाइन किया है, वो हर एक बटन्स का हाइट सेम होना चाहिए, उसका बॉर्डर या तो डिजाइनिंग जो आपने डिसाइड करके रखा है वो सेम होना चाहिए। तो ये चीज के लिए आप क्या करोगे, यू विल मेक दी थीम। आप थीम बनाओगे और वो थीम में आप ये सारी चीजें डिफाइन करोगे, लेबल है तो ऐसे लेबल होना चाहिए, बटन है तो ये बटन होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दी थीम। इसको क्या बोलते हैं, थीम, बिकॉज वेन एवर यू गो और विजिट एनी वेबसाइट तो आप देखना उसका पूरा लुक जो है वो सेम होता है। ठीक है, एक पेज आपने ओपन किया होम पेज, तो उसमें जो कंटेंट का साइज है या तो कंट्रोल्स का साइज है वो, एंड सेकेंड पेज को ओपन करो तो उसमें कंटेंट का साइज, उसका क्या बोलते हैं जो फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग क्या होता है सेम होता है। ऐसे कभी नहीं होता कि एक में इतना बड़ा साइज यूज किया है, फॉन्ट साइज दूसरे में थोड़ा छोटा है, नहीं। हाँ, कंटेंट विल बी चेंज, कंटेंट चेंज होगा, बट उसका जो लुक जो है पूरा वेबसाइट का वो कैसे होता है, सेम ही होता है। अब वो उन्होंने होम पेज पे कोई लेटेस्ट यूज किया है वरंडा वगैरह फॉन्ट टाइप, तो सेकंड पेज पे हर एक मतलब जितने भी उतने टेक्स्ट लिखा है उसका वरंडा ही टाइप होगा, फिर एक में कुछ और, एक में कुछ और, एक में कैपिटल एक में स्मॉल, ऐसे नहीं होता। ठीक है, फॉर्मेटिंग जो डिजाइनिंग है वो क्या होता है, सेम होता है फॉर द होल वेबसाइट के लिए। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू विद इन थिंग्स। आपने सपोज रजिस्ट्रेशन पेज आपने बनाया, तो वो पेज में अपने लेबल का साइज कुछ प्रॉपर्टीज में जाके सेट किया है, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा कि मैं और कोई पेज बना रहा हूँ तो मुझे उसमें लेबल का साइज इतना ही रखना है, बटन ऐसे ही करना है, रेडियो बटन ऐसे ही लेना, तो आप कितना याद रखोगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू विल डू, यू विल मेक दी थीम। एक थीम बनाओगे
वो थीम में एक बार ही डिसाइड, एक ही लिखोगे, मतलब एक ही बार यू हैव टू वन टाइम्स ओनली यू हैव टू राइट के लेबल है तो लेबल का टेक्स्ट कलर ये होना चाहिए, बॉर्डर कलर, बॉर्डर ऐसे होना चाहिए, साइज इतना होना चाहिए, फॉन्ट कलर इतना होना चाहिए, बैकग्राउंड इतना होना चाहिए। तो एक लेबल के लिए आपने लिखा तो आपके वेबसाइट में जितना भी पूरा लेबल है उसको एक सेम लुक्स अप्लाई हो जाएगा जो आपने लिखा है वो प्रॉपर्टीज। ओके, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग द थीम। तो यू कैन कीप द फाइल सेपरेट। ओके, आप एक सेपरेट थीम फाइल बना के रखोगे फॉर द डिजाइनिंग के लिए। A theme is a collection of settings that define the look of controls and web page. Again, एक ही चीज repeat हो रही है। These themes are applied across all pages in a web application to maintain the consistent appearance. Okay, these themes file applied across all the pages in web application. आप हर एक पेजेस को भी अप्लाई कर सकते हो to maintain the consistent appearance. Themes are included images and skin file. You can also include the image. Okay, अगर आपको इमेज ऐड करना है थीम फाइल में, ठीक है, तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। The skin file set the visual properties of ASP.NET controls. Themes फाइल में क्या होगा, प्रॉपर्टीज ही हम लोग सेट करेंगे, जो प्रॉपर्टीज हम लोग सेट करे थे इंडिविजुअली कंट्रोल के लिए, वही प्रॉपर्टीज हम लोग सेट करेंगे थीम्स में। ओके, बट सेम हर एक के लिए हो जाएगा वो। थीम्स आर टू टाइप्स का थीम्स है, पेज थीम है एंड द सेकंड इज ग्लोबल थीम। A page theme contains the control scheme, style sheet, graphics files, and other resources inside the subfolder of the applet theme folder in the Solution Explorer window. A page theme is applied to the single page of website. ठीक है, अगर आपको एक पर्टिकुलर एक पेज के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, एक पेज में जितना भी बटन है, जितना भी कंट्रोल्स है, वो सेम होना चाहिए, लेबल्स है, बटन से, एक पेज में, एक पेज में, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन पेज, पर्टिकुलर पेज के लिए आपको असाइन करना है, तो यू कैन यूज द पेज थीम। ग्लोबल थीम, एक ग्लोबल थीम मतलब कि आपको पूरे होल वेबसाइट के लिए सेम रखना है। ओके, तो यू कैन use the global theme. A global theme is theme that is applied to all the websites on a web servers and includes property settings and graphics. These themes allow us to maintain all the websites on the same web server. Web server, okay, sorry, web server पे जितने भी वेबसाइट्स है उसके लिए आपको रखना है, तो यू कैन डिफाइन द ग्लोबल थीम। ओके, सी प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जस्ट अभी देख लो स्टेप्स उन्होंने क्या किया है। जस्ट ऐड न्यू आइटम में जाके, ठीक है, पहले तो अपना वेबसाइट वगैरह लेना है, ठीक है, देन उनको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में सेम थिंग ऐड करो। व्हाट यू विल ऐड, थीम। ओके, पहले आपको फोल्डर ऐड करना है, ASP.NET फोल्डर ऐड करोगे, थीम फोल्डर ऐड करोगे, इस सब फोल्डर नेम थीम वन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, व्हेन यू विल ऐड थीम ना, एप्लेट थीम फोल्डर ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली थीम वन जो फोल्डर है, सब फोल्डर दैट विल बी एडेड। देन स्किन फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इन दैट स्किन फाइल में आपको क्या करना है, दिस इज अ स्किन फाइल। ओके, सॉरी, स्किन फाइल है ये, जिसमें यू विल राइट दी आपका जो फॉर्मेटिंग है वो लिखोगे। तो आपने क्या लिखा है फॉर्मेटिंग में, देखो ASP लेबल है, तो लेबल जो है रनएट सर्वर करके लेबल जो है वो उसका विड्थ सेट किया है, हाइट सेट किया है, फॉन्ट बोल्ड इज ट्रू किया है, साइज एक्स लार्ज, फॉर कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है। देन बटन के लिए दिया है कि बटन का जो फॉर कलर विल बी रेड, बैकग्राउंड कलर विल बी येलो। टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी क्या किया उन्होंने, फॉन्ट कलर ट्रू सेट किया है, बोल्ड मतलब सॉरी फॉन्ट बोल्ड ट्रू दिया है, मतलब बोल्ड हो जाएगा। साइज, कलर, बैक कलर, फॉन्ट इटालिक। तो ये एक स्किन फाइल में, ठीक है, स्किन फाइल में उन्होंने क्या किया है, फॉर्मेटिंग बना के रखा है। तो दिस इज योर स्किन फाइल, उसका एक्सटेंशन देखो डॉट स्किन। ओके, एप्लेट थीम फोल्डर ऐड करोगे, इन दैट फोल्डर थीम वन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। देन उसमें आपको ऐड करना है स्किन फाइल, यू हैव टू ऐड स्किन फाइल, एंड इन दैट स्किन फाइल आप क्या करोगे, फॉर्मेटिंग बना के रख दोगे, जो भी आपको फॉर्मेटिंग बनाना है लेबल के लिए, बटन की, जो भी कंट्रोल्स के लिए, कंट्रोल्स इन शॉर्ट ऑल दी कंट्रोल्स के लिए यू कैन सेट दी प्रॉपर्टीज हियर। तो आपने ये प्रॉपर्टीज सेट कर दिया। नाउ अभी ये जो आपने स्किन फाइल बनाया तो उसको आपको कोई वेब पेज में अप्लाई करना है, तो यू कैन जस्ट वहाँ पे ये स्किन फाइल का थीम का क्या देना है, आपको नेम देना है। तो फॉर एग्जांपल सी, ये हमने कोडिंग करके रखा है। ओके, एक बार स्किन फॉर्मेटिंग थीम बना के रख दिया ना, ये थीम को हमको यूज करना है, वी हैव टू यूज दिस थीम इन द वेब पेजेस। हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे ये थीम को, हमारे वेब पेजेस में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेज है default.aspx करके पेज है, ठीक है, तो उसमें हमको ये जो थीम बनाया है उसको ऐड करके रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट थीम इक्वल्स टू वो थीम का नेम यू विल राइट। ओके, सी थीम का नेम क्या है, थीम वन। तो आप पेज डायरेक्टिव में यू विल ऐड दी थीम एट्रीब्यूट ऐड करोगे और उसका नेम असाइन करोगे, जो भी आपने नेम बनाया था,
यहाँ पे दिया था, बस इतना ही करना है। एंड जस्ट आपका जो डिजाइनिंग आप करते हो कंट्रोल्स जैसे जो भी लेते हो, आपको जो भी डिजाइनिंग करना है आप डिजाइन पार्ट में जाके, ठीक है, डिजाइन करोगे एंड ऑटोमेटिकली, एंड जब आप डिजाइन को रन करोगे तो ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल ये मैंने डिजाइन किया है टूल बॉक्स में जाके, ओके, ये एक लेबल लिया है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लिया है, बटन लिया है, ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगी, ठीक है, जब मैं ये पेज एक बनाया मैंने, जब पेज को रन करूंगी तो ऑटोमेटिकली जो थीम अप्लाई किया था वो थीम विल बी अप्लाई टू दिस कंट्रोल, जो लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था ना थीम फाइल में, ये ठीक है, ये देखो रेड कलर, फॉर कलर, बैकग्राउंड कलर येलो, ओके, जो लेबल है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ओके, फोर कलर येलो, तो ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा। तो थीम इज यूज टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू द कंट्रोल्स, वेब सर्वर कंट्रोल्स की। तो जस्ट हमको क्या करना है, वी हैव टू ऐड वन फोल्डर, एक फोल्डर ऐड करना है, एप्लेट थीम करके फोल्डर ऐड करना है। जैसे आप एप्लेट थीम करके फोल्डर ऐड करोगे ऑटोमेटिकली थीम वन एक सब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, and in that subfolder you have to add the skin file, आपको ऐड करना है। we will do the practical in the next lecture, don't worry, okay, you have to add skin file। स्किन फाइल ऐड कर दिया तो सिंपली जो भी कंट्रोल्स का आपको फॉर्मेटिंग देना है उसका फॉर्मेटिंग यहाँ पे असाइन कर दो, सेट कर दो। एक लेबल लिया है तो लेबल का विड्थ, हाइट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉर कलर दे दिया। बटन लिया है, बटन का फॉर्मेटिंग हमने सेट कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स लिया है, टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेटिंग सेट कर दिया। तो दिस इज अ स्किन फाइल। नाउ ये जो हमने फॉर्मेटिंग थीम बना के रखा है, आपको जो भी वेब पेज में देना है यू कैन असाइन, ओके, यू कैन असाइन। तो फॉर एग्जांपल एक डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स करके वेब पेज, उसमें हमको असाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पेज डायरेक्टिव में, कहाँ पे, इन द पेज डायरेक्टिव ऑफ द वेब पेज यू हैव टू ऐड दी वन एट्रीब्यूट, थीम एट्रीब्यूट आपको ऐड करना है। एंड इक्वल्स टू करके जो थीम का आपका थीम के जो नाम है थीम वन वो असाइन कर दो, बस इतना ही, 2 स्टेप्स यू हैव टू डू, ओके। देन वो वेब पेज में आपका जितना भी लेबल्स होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा, बटन होगा, उसको ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेटिंग हमने सेट किया ना वो अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ओके। तो दिस इज अ थीम, ये क्या है आपका थीम हो गया। क्लियर, यस और नो? ओनली 2 स्टेप्स यू हैव टू परफॉर्म, कि आपको एप्लेट थीम फोल्डर ऐड करके उसमें स्किन फाइल ऐड करना है एंड उसमें आपको फॉर्मेटिंग करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेटिंग करके रखना है। जो भी कंट्रोल्स के लिए, रेडियो बटन के लिए करना है तो रेडियो बटन के लिए हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। चेकबॉक्स के लिए, ऐड रोटेटर कंट्रोल, जो भी कंट्रोल के लिए आपको फॉर्मेटिंग करना है आप एक बार ये स्किन फाइल में करके रख दोगे, ओके। ये स्किन फाइल में फॉर्मेटिंग करके रख दिया, देन आपको क्या करना है, कोई भी वेब पेज में, इन एनी वेब पेज यू कैन असाइन दिस स्किन फाइल। कैसे, जस्ट जो भी वेब पेज में अप्लाई करना है वो वेब पेज के सोर्स कोड में जाओ, इन दी पेज डायरेक्टिव, ओके, दिस इज अ पेज डायरेक्टिव। इन दी पेज डायरेक्टिव आपको एक वन मोर एट्रीब्यूट ऐड करना है थीम करके, बस, एंड वो थीम का नाम दे देना है, बस इतना ही करना है। तो जितने भी वेब पेज में आप असाइन करोगे तो इन दैट ऑल, इन ऑल वेब पेजेस में जितने भी लेबल्स होगा, जितना भी बटन्स होगा, जितना भी टेक्स्ट बॉक्स होगा ना, हर एक को ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया, एक बार डिजाइनिंग बना के रखा, फॉर्मेटिंग बना के रखा, एंड वो फॉर्मेटिंग को एवरी टाइम यू आर यूजिंग, जस्ट अप्लाई करो। तो आपको बार बार लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन को सेट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेटिंग बनाया था वो असाइन हो जाएगा, एकदम इजी है, ठीक है। तो ये वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, विद प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे, ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करना, हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ थीम। स्टाइल शीट भी वही चीज है, स्टाइल शीट एंड थीम बोथ आर दी सेम, कंसेप्ट उनका सेम है, बट डिफरेंस क्या है, वी कैन असाइन स्टाइल शीट ओनली HTML टैग्स। जो HTML टैग्स है उसको ही हम लोग असाइन कर सकते हैं। इन द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो देयर आर HTML टैग्स अवेलेबल है, हेड टैग है, पैराग्राफ है, बॉडी है, ठीक है, div टैग है। तो ये सारे टैग्स को यू कैन असाइन ओनली स्टाइल शीट। बट आपको कंट्रोल्स को अगर फॉर्मेटिंग करना है, कंट्रोल्स को फॉर्मेटिंग करना है तो यू विल यूज दी थीम, ओके। कंट्रोल्स को फॉर्मेटिंग करने के लिए आप क्या यूज करोगे, थीम यूज करोगे। तो ये स्टाइल शीट हो गया एंड थीम हो गया। तो ये दोनों प्रैक्टिकली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देन उसके बाद वन मोर थिंग इज देयर, मास्टर पेज। और एक चीज आती है डिजाइनिंग के लिए, मास्टर पेज, ओके, वन मास्टर पेज इज आल्सो देयर, ओके। तो मास्टर पेज क्यों है, फॉर हेडर, फुटर, साइड्स मेनू, ओके, वो लुक्स क्रिएट करने के लिए यू हैव द मास्टर पेज। अभी जो हमने देखा थीम एंड स्टाइल शीट, बोथ आर किसके लिए है, फॉर्मेटिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। मास्टर पेज भी डिजाइनिंग के लिए, बट मास्टर पेज डिजाइनिंग क्या होगा, कॉमन होगा फॉर ऑल दी पेजेस, ओके। मास्टर पेज इज कॉमन फॉर ऑल दी पेजेस।
मास्टर पेज कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस, एक तो मास्टर पेज होगा एंड वन मोर कंटेंट पेज होगा. फॉर एग्जांपल सी हेडर, मेनू, फुटर, ठीक है. अगर कोई भी एनी वेबसाइट्स, इन एनी वेबसाइट्स वहां पे हेडर सेम होता है, फुटर सेम होता है, मेनू सेम होता है. ओनली चेंज क्या होता है, स्पेसिफिक कंटेंट, ये कंटेंट चेंज होता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट पेज. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट पेज. तो हम लोग क्या करेंगे, हेडर, मेनू, फुटर, ये सब एक बार फिक्स बना के रख देंगे. तो फॉर दैट वी हैव टू ऐड वन मास्टर पेज. हमको मास्टर पेज ऐड करना है, वो मास्टर पेज का डिजाइनिंग हमको रेडी एक बार बना के रखना है कि हेडर ऐसे होगा, मेनू ऐसे होगा, फुटर ऐसे होगा. ओनली चेंज क्या होगा, कंटेंट पेज चेंज होगा. तो कंटेंट पेज मतलब क्या, हमारा वेब पेज. ओके, हमारा वेब पेज. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे वेब पेज को मास्टर पेज में ऐड करते जाएंगे. तो ये भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे. तो इन द मास्टर पेज यू कैन यूज द स्टाइल शीट यूज कर सकते हो, थीम्स यूज कर सकते हो विद इन द मास्टर पेज. ठीक है, मास्टर पेज के अंदर यू कैन यूज द डिजाइनिंग, मतलब सॉरी, यू कैन यूज द थीम. थीम क्या है, कंट्रोल्स को डिजाइन करने के लिए, कंट्रोल्स का फॉर्मेटिंग करने के लिए. एंड मास्टर पेज क्या है, आपका जो सारे पेजेस है ना उसको सिमिलर लुक देने के लिए. क्योंकि आप देखो कोई भी वेबसाइट्स में फुटर हेडर सेम रहता है, ओनली कंटेंट चेंज होता है. फुटर में डेवलप बाय या तो कॉपीराइट, वो हर एक वेबसाइट में हर एक उसके हर एक पेजेस में सेम रहता है. ठीक है, ऊपर हेडिंग में भी उसका हेडिंग है या तो लिंक्स वगैरह दिया हुआ है वो सेम होता है. मेनूज में भी सेम होता है. तो ऐसा नहीं कि यू कैन क्रिएट ओनली 1 2 3 सेक्शन. अगर आपको इस साइड लेफ्ट साइड भी कुछ मेनूज डालना है तो यू कैन क्रिएट, जस्ट डिवीजन करना है पेज का. तो ये भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. उसके लिए आपको ऐड करना है मास्टर पेज. यू हैव टू ऐड वन मोर आइटम, मास्टर पेज. मास्टर पेज ऐड करोगे, ठीक है, देन मास्टर पेज को आप डिजाइन करोगे. ऐसे डिजाइन करोगे, जितना भी आपको पार्टीशन में क्रिएट करना है मास्टर पेज को डिजाइन करोगे. एंड देन उसमें कंटेंट ऐड. ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये तो मुझे प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा. विद द प्रैक्टिकल आपको बताऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा. तो हाँ, बट एक चीज यू हैव टू सेट इन आवर माइंड कि विद इन द मास्टर पेज वी कैन यूज द थीम्स एंड स्टाइल शीट. बिकॉज थीम्स एंड स्टाइल शीट जो है वो फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, फॉर टैक्स के लिए एंड कंट्रोल्स के लिए. तो वो चीज आप मास्टर पेज में अप्लाई कर सकते हैं. मास्टर पेज यू कैन अप्लाई दी थीम्स एंड आपका जो भी स्टाइल शीट्स है वो यू कैन अप्लाई विद द मास्टर पेज. मास्टर पेज जो है वो कॉमन लुक के लिए, हेडर, फुटर, साइड्स, मेनूज, ओके, वो सेट करने के लिए आप यूज करोगे मास्टर पेज. तो ये 3 टॉपिक्स जो है दैट इज कनेक्टेड टू ईच अदर. यू कैन यूज ऑल दिस टॉपिक्स, मतलब ऑल दिस कंसेप्ट जो है प्रैक्टिकली एक साथ एक दूसरे में यूज कर सकते हो. मास्टर पेज के अंदर आप स्टाइल शीट यूज कर सकते हो, थीम यूज कर सकते हो. ठीक है, तो पहले हम लोग इन द नेक्स्ट लेक्चर इंडिविजुअली हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे थीम का. देन वो थीम्स को हम लोग अप्लाई करेंगे मास्टर पेज के लिए. पहले मास्टर पेज कैसे क्रिएट करना है दैट वी विल सी, एंड देन वी विल डू ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करते हैं ये. क्लियर, ओनली प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आज थियरी एक्सप्लेन किया, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द प्रैक्टिकल. ओके, मास्टर पेज, थीम एंड स्टाइल शीट क्लियर? यस और नो? यस स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा. ओके, यस मैम. okay, okay. So now in the next lecture we will